السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں اپنے پیارے فیکے اور اس کے دوست چھانے کی خوبصورت باتوں سے۔ لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں۔ سبحان اللہ۔ ابا بہت سنتا ہے چھانے سے یہ، ابا کہتا ہے کہ یہ میرے دل کے اوپر لگتا ہے جا کے یہ والا صحیح شیر جو ہے۔ اماں بھی کہتی ہے کہ دل کو تسلی دینے سے ہی زندگی صحیح ہوندی ہے، اگر پھر تسی لالچ کرو تے موک دیو ہی نہیں۔ ہمارے گھر میں مہمان آئے نا تو ابا کہتا ہے ذرا حساب لاؤ، سارا دن سموسیاں تے بحث ہوندی رہی ہے، رمضان کے مہینہ ہے تے سارا دن بہ کے تو مہمان یہی کہہ رہے ہیں جی سموسا 40 روپے دا ہو گیا۔ ابا اندھا یار سموسا کدھڑے لکھیا ہے روزے چ ضروری ہے، 40 روپے دا ہو گیا تے دفع کرو کو اور کم کرو جو ضروری ہے، جو اللہ پاک نے روزیوں کے لیے ضروری کہا ہے وہ والا کرو کام۔ سارا دن بہ کے کہتے ہیں یہی روتے رہندے ہیں کہ سموسا 40 روپے دا ہو گیا۔ یہ تو آلو والا ہے، چکن والا 50 روپے کا ہے۔ لو جی اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی دنیا کے۔ مسلمانوں کو روزے دیے ہیں اللہ پاک نے ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ سموسے اور پکوڑے حاصل کرتے پھرتے۔ جو سارا سال کھاتے ہیں وہی کھاؤ تے روزہ رکھو۔ ابا کہندے آپ ہی تے پوئے چڑھا لیندے نے، فلوٹاں لیاں نو بھی تے سموسیاں لیاں نو بھی تے پکوڑیاں لیاں نو بھی، آپ ہی پوئے چڑھا لیندے نے تے پھر آپ ہی کہندے نے کیا مہنگے کیوں بیچ دینے۔ تو جب ان کو پتہ ہی لگ گیا کہ انہوں نے خریدنا ہے رو پیٹ کے بھی، تو پھر وہ بھی پھر لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سموسے پکوڑے بغیر مزہ نہیں آتا افطاری کا۔ مزہ لے ناستے روزے رکھی دینے کہ ثواب لے ناستے رکھی دینے؟ ثواب کے لیے تو پھر یہ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے۔ سموسا کیڑی چنگی چیز ہے۔ میں تے اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ ساڑیاں پاسے تے بند ہوندا ہے تے دے چ آلو وڑ دے کہ میں نہیں کھاتا، میں کہتا ہوں کہ یہ غلط چیز ہے۔ ایک چیز دا سڑ پیر دا ہی نہیں پیا پتہ لگدا کہ آلو وڑے کدھڑوں دی نے، کہ بندہ کیوں کھا لے ہمیں، وہ پھر ٹیڈے چ جا کے بھی پھر آلوہاں نے ایسے طرح فڑا نہیں کرنا ہے نا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب ہمارے اسٹوڈیو کا دروازہ اتنا سا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ گوگا اندر بڑا کیسے؟ میں تو وقی پر نہیں آیا نا باپ جی۔ تو آلو بھی وقی پر دیا جائے؟ نہیں یار، وہ چھوٹے چھوٹے کر کے اس کو اس میں رکھ کے تو ایسے بند کیا جاتا ہے۔ صرف پراٹھے جی تے نہیں لائی جی پراٹھے۔ انہاں دا شیدہ موچ موسے نال ڈال دایا ڈال سکتا ہے۔ کیسے؟ ایسے اس کو رکھ کے اس میں ایسے کر کے پھر اس میں آلو بھر کے اس کو ایسے پریس کر کے تو سموسا تیار ہو جائے۔ زبردست، صحیح بات۔ ایسے کر رہے ہیں جیسے یہ آرام سے ایسے کر سکتا ہے۔ یہ اگر سموسے کو ایسے کرے نا تو آسمانی جھولے سے بندہ نہیں لٹکتا، یہ اس طرح لے کے آئے نہیں۔ تو دیکھو نا ذرا، ہے کوئی بات کرنے والی کہ سموسا نہیں پیا خریدیا جا رہا تے رونا پٹنا پیا، غریب بندہ کتھے جائے؟ غریب جڑی روز روٹی کھاندا سی
ਸੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਖੇੜੋ ਜਾ ਸਮੋਸਾ नानी के पिंडों आया है बहुत बुरी बात है हम लोग तो सिर्फ खजूरें लाते हैं 5-6 अच्छा अब्बा कहते हैं कि ये एक सुन्नत पूरी कर लेते हो फिर हम सीधी रोटी खा लेते हैं तो हम सुबह भी सैडी में भी सूफी साहब है ना जो हाँ जी वो हमारे घर आते हैं अब्बू को मिलने ते अबे मेरे को कहते हैं कि ए शुक्र करो सा चल जाए पिया ए शुक्र करो अल्लाह ने नजर दी हुई है ए शुक्र करो अल्लाह ने बोलन दी जांच दसी हुई है तुसी समोसे नहीं लभदे ते ढोन बह जांदे 40 रुपए का बस ठीक है। ये सादी खुराक खाने से इंसान की तबीयत बोझल भी नहीं होती और वो फ्रेश भी रहता है। मैं तो नहीं कभी भी सोचता यार तुम ये देखो कि बोझल लफ्ज बोल कौन रहा है जिसका अपना टोटल बोझल जो है 5 ग्राम 5 ग्राम ਅਸੀਂ तो सुन ही नहीं सकते 5 ग्राम भी नहीं सुन सकते ये वाली चीजें जो है ना सूफी साहब कहते हैं दिल च रखो शुक्र करन वालियां जे फिर की है साडे कोल जे गड्डी नहीं है ते साडे कोल चांद है सूरज है सितारे हैं आसमान है जमीन है हवा है हाँ सांस लेने के लिए हवा है शुक्र है यार। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮੋਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਿਆਪਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾ ਲਵੋ ये बहुत बड़ा सियापा डाला हुआ है हम मुसलमानों ने अपने आप को सूफी जी कह रहे सन ठीक है जी मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ नींबू पानी पीना चाहिए एक टप अच्छा कह देखो कौन रहा है कि सिर्फ नींबू पानी पीना चाहिए जो 1 दर्जन समोसे बाजार से लेके आता है ना तो एक दिन भी इसने शॉपर उतारा नहीं है शॉपर समेत खाए हैं इसने बाजी एडे समोसे होंगे ने मेरी अम्मा कहती है कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ 9 ਵਜੇ ਜਾਗੋ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਫੜੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਖਾਈਦਾ ਨਾ ਪੀਵੀਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਨੇ ਆ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ शरबत बनाओ मैनू नहीं पता छोले बनाओ इस तरह तो फिर महंगाई होती हुई है ना ठीक है तू ठीक कह रहे हैं रोजा कुछ भी नहीं कहता ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ तो और क्या अगर सारा साल जो चीज खा रहे हैं वही खाएंगे तो फिर उन दुकानदारों में पता लग गया कि रोजियों में महंगाई कर देनी है जी चीनी महंगी हो जाती है कभी दालें महंगी हो गई हैं तो ना खरीदो हाँ बिल्कुल ठीक पहले खरीद लो अब्बा कहता है कि रोजियां च फिर भज के जांदे ने दुकानां ते फिर बादुआवां देंदे ने गालां कढदे ने तो आपको पता नहीं कि रोजे आ रहे ने रोजे केड़े गड्डी अंगड़े एकदम सामने आ जांदे रोजियों का तो सारे साल इंतजार होता है तो फिर अपना बंदोबस्त भी कर लो तो अगर नहीं करोगे तो फिर दुकानदार भी शौखे हो जाते हैं और एक तरफ से नमाजा पढ़ के सूफी जी कहते ने कि सवाब खट देने ते दूजे पासियों ब्लैकां कड़ के ते महंगाइयां कड़ के ते गुनाह खट देने तो फिर फायदा की होया नमाजा पढ़न दा बिल्कुल ठीक है ओहो जुनेद साहब ये समोसिਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜਨ ਸਮੋਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਏ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ किस तरह के हमारे लिए
हाँ 6 आलू वाले ने 6 कीमे वाले ने हमारे लिए मंगाई थी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ तो वो तो वापस होते ही नहीं है हम किसी और को दे देंगे, तुम तो खिलाफ हो ना समोसों के। नहीं वो हमारे लिए मंगाए हैं तो बेटा तुम्हें क्या तकलीफ है उन्होंने मंगाया तो तमीज से बात करो, ऑफिसर है। ਅਫਸਰ अफसर है, अफसर है। समोसे चेक करता है ये ਸਰ ਜੀ ਸਮੋਸੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਤੇ ਚਨੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ वो एदी जेब च पा दियो समोसे क्यों वापस कर दियो ਤੁਸੀਂ ਖਾਏ जो जो चीजें आ जाती हैं वो फिर रिज़्क जाया नहीं करते वो फिर मेहमानों को खिला देते हैं जो मेहमान आए होते हैं ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ये कड़े मेहमान ने तेरा तो रोज ही ढेड़ लगा होता है हम प्रोग्राम नहीं देखते चलो ये साथियों, बात नहीं होती कि जेड़े समोसे आए हुए हैं वो वापस भेज दियो मैं ये कह रहा हूँ कि मंगाओ ही ना पहले ये मंगा ले ते फड़ लिया हो रखो मैं जगह नाज़रीन, यहाँ में चलेंगे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। दुनिया में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है उसका पाकिस्तान सिर्फ 1% खारिज कर रहा है, लेकिन माहौलियाती आलूदगी से जिन मुल्कों को खतरा है सबसे ज्यादा, उस फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 5वां है। माय गॉड, मैं शेखुपुरा चला जाऊंगा, मैं शेखुपुरा चला जाऊंगा। अच्छा गोगा जी, इस जुमेरात को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया है, तो जाहिर है वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया तो पूरी दुनिया में मनाया गया। जी अच्छा, ये जो कुछ अर्सा पहले तक मैं ये समझता था, और मैं खुले दिल से इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मैं उन लोगों में शामिल था आज से 5-10 साल पहले जो ये समझते थे कि यार ये जो पोल्यूशन है, ये जो ओजोन लेयर की बातें करना और दुनिया के माहौल को ख़तरात लाहक हैं, इसका कुछ किया जाना चाहिए। तो मैं भी उन लोगों में शामिल था जो ये समझते थे कि ये अमीर मुल्कों के, ये रजेटेड जिसको कहते हैं, ये उनकी ये मस्ती हैं, मौज मस्ती हैं, उनके चोंचले हैं, ये हम गरीब मुल्क हैं, हमें दाल रोटी की पड़ी हुई है, तो हमें पोल्यूशन से क्या, हमें इनसे क्या, ये कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है, क्या हो रहा है, और दुनिया का मौसम कैसे तगय्युर और तबद्दुल का शिकार हो रहा है। मैं उन लोगों में शामिल था, लेकिन हर गुजरते साल के बाद हमें अपनी आंखों से जो हमने देखा है कि मौसम की जो तब्दीलियां हैं, जो ये वाकई अब तेज़ी के साथ जो कुछ पूरी दुनिया में होता जा रहा है, ये इसके जो असरात हैं ये किस कदर खौफनाक है। तो मैंने तो फौरी तौर पे अपना ग्रुप चेंज कर लिया है, मैंने तो फ्लोर क्रॉस कर लिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया का जो अगर नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 या नंबर 3 मसला ज़रूर है जी। इस वक्त जितने बड़े मसाइल इंसान को, इंसानियत को दरपेश हैं, उनमें ये सर फहरिस्त है। इस कदर खौफनाक मसला है, इस कदर खौफनाक मसला है, हर मुल्क इससे मुतासर हो रहा है। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो मुल्क इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है या पोल्यूशन फैलाने का जिम्मेदार है वो उतना ही ज़्यादा मुतासर हो रहा है। मसलन हम जो हैं, हम दुनिया में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है इस वक्त, उसका 1% हम उमिट करते हैं, यानी उसके 1% जिम्मेदार हैं। और इस जरा गौर से बात सुनिएगा, दुनिया में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है उसका पाकिस्तान सिर्फ 1% खारिज कर रहा है, लेकिन माहौलियाती आलूदगी से जिन मुल्कों को खतरा है सबसे ज्यादा, उस फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 5वां है। माय गॉड, मैं शेखुपुरा चला जाऊंगा, मैं शेखुपुरा चला जाऊंगा। नहीं, आपके जाने से मसला हल नहीं होगा, जहां जहां आप जाएंगे पोल्यूशन आपका पीछा करेगी। लेकिन ये हंसने वाली क्या बात है, सीरियसली देखिए बात ये है, मैंने तो सुना मौत और रिज़्क पीछा करते हैं पोल्यूशन। यार क्यों घबराहट में डाल रहे हो बच्चों को ऐसे ही? कोई ऐसी बात नहीं गौरी, तुम फिक्र ना करो। पोल्यूशन तेरे को आके हाउ करके दौड़ जाएगा। नहीं, वैसे बात ये बड़ी अहम कर रहा है। देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि खतरनाक चीज है,
जो पोल्यूशन की मेरा ख्याल है सबसे खतरनाक जो वजह है, बिल्कुल ओजोन लेयर, ये सारी चीजें हम वो हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम जो आबो हवा में फेंक रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो 1%। हाँ तो खतरा है जिन लोगों को पोल्यूशन से, उसमें हम 5वें नंबर पे हैं। हाँ। Why this is faulted? अच्छा, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, लोग Touch me not. लोग ये कहते हैं कि आपके हमसाया में हिंदुस्तान और चीन है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपसे कई गुना ज्यादा है, आगे हैं, तो जाहिर है कि वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर बिल्कुल ठीक है, इस मामले की संगीनी का हमें पहले अंदाजा ही नहीं था। देख लें हमारे सामने क्या हो रहा है, ये आजकल जो बारिशें हो रही हैं ये फरवरी में होनी चाहिए थी। ये पूरी जो तब्दीली हो रही है, मौसमियाती तब्दीलियों की जद में आई हुई है दुनिया और पाकिस्तान खास तौर पे, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि ये बारिशें जो आजकल हो रही हैं ये मिड फरवरी में होनी चाहिए थी। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला है कि फरवरी में अगर ये बारिशें हो जाती तो उस वक्त गंदम की फसल को इन बारिशों की अशद जरूरत थी, और अब इन बारिशों से बचना गंदम की फसल के लिए अशद जरूरी है। अब अगर बारिशें आजकल जो हो रही हैं ये गंदम के लिए कातिल है, ये गंदम को फंगस लगा देंगी। सर कटाई के करीब कटाई आन पहुंची, और उस वक्त अगर बारिश हो रही है, और खास तौर पे जो छोटा काश्तकार है जो दरांती से काटता है बेचारा, वो 3-4 दिन बाद जाके उसकी थ्रेशिंग करता है, तो वो क्या कि उसकी तो फसल बर्बाद हो जाएगी बेचारे की। बिल्कुल इसी तरह हमें कपास की फसल की सूरत में नुकसान उठाना पड़ा है इन्हीं बारिशों की वजह से। सारे मौसम जो है वो तलपट होके रह गए, उसकी वजह से पूरा साइकिल हमारा डिस्टर्ब हो गया। एक फिक्स साइकिल था जो डिस्टर्ब हो गया। चलो फसलों को भी एक तरफ रहने दो, और उस हाथ से फसलें एक साइड पे करें, इधर गोगा बैठा हुआ है। यार कच्ची फसल है, नहीं कच्ची फसल नहीं खाता। क्योंकि पता कच्ची पक्की था। वो कहते कौन सी फसलें उठाड़ देंगे। चले जी गोगा जी फसल वापस करें, एक फसलों को जी एक तरफ, दोनों हाथों से एक तरफ रहने दे। मसला है इंसानी सेहत का। अब देखो जो पोल्यूशन के नतीजे में जाहिर है सांस की बीमारियां, जाहिर है सांस हम इसी फिजा में लेते हैं ना, और कहां से लेते हैं? सांस के लिए हमने कोई ऑक्सीजन सिलेंडर तो रखे नहीं हुए, या शीशे वाला कमरा तो रखा नहीं हुआ। अच्छा, सांस इसी फिजा में लेते हैं तो जाहिर है पोल्यूटेड फिजा में सांस लेते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ 1.5 लाख अमवात ये पोल्यूटेड एयर में सांस लेने से वाक़ई होती हैं। 1.5 लाख। कोरोना से कितनी अमवात हुई हैं पाकिस्तान में अभी तक? 17,000। और सांस की बीमारियों के नतीजे में 1.5 लाख अमवात हर साल होती हैं। अंदाजा लगा लो तुम किस कदर खतरनाक सूरत हाल से दो चार है, और हम थोड़ी सी पाबंदी भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हर वो चीज जिसका ताल्लुक पोल्यूशन से है, हर वो चीज, मसलन ये आपने शॉपिंग बैग्स पे पाबंदी लगाई थी, कुछ अरसा लगी रही है, कुछ अरसा सख्ती भी हुई है, अब फिर वही सरेआम हर दुकानदार तोल तोल के वो देता जा रहा है। कोई पाबंदी लगा के देख ले, ईंटों के भट्टे पे वो ज़िगज़ैग करवाने पर पाबंदी लगी थी, कितने भट्टे जो हैं वो हुए थे। कितनी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज हैं वो जो इसके लिए जरूरी है कि आप धुआं जो है वो फिजा में ना छोड़े और उसको आप प्रोसेस करके फिर फिजा में छोड़े, कितने फीसद इंडस्ट्रीज हैं जो इस बात पे अमल कर रही हैं? और इसके लिए पूरा एक महकमा मौजूद है, और उस महकमे का वाहिद काम जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल करना नहीं है। उस महकमे के 90% अफसरान हैं, उनका एक ही काम है। हाँ जी पोल्यूशन लेके ते राम ना काट जाते, सारी पोल्यूशन जेब में डाल लेते हैं, और उन्होंने मुंह भी पोल्यूशन रगे हो गए। ये लाहौर के इर्द गिर्द बेशुमार ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो नजर आती हैं, और अब देखें ना लाहौर जैसे शहर में चंगे भले बड़े लोग, सियाने बयाने लोग जो कानून को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कानून पे अमल दरामद करवा सकते हैं, वो देखते ही होंगे ना। यहाँ शेखुपुरे रोड की तरफ चले जाएं, आप ये फिरोजपुर रोड की तरफ चले जाएं, जीटी रोड की तरफ, रायवेंड रोड की तरफ, कई चीजें आपको नजर आएंगी जो पोल्यूशन तड़ धुआं जो है वो फजा में फैला रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, रोज का काम। फैक्ट्रियां भी एक तरफ रहने दो, जो कुछ हम कर रहे हैं इस फितरत के साथ उनको भी छोड़ दो। कुछ अर्सा पहले तक आपने देखा होगा कि हमारे दही इलाकों में, हमारे गांव देहात में ऑलमोस्ट हर घर में दरख्त होते थे। हर घर में दरख्त होते थे, चाहे वो घर छोटा होता था या बड़ा होता था। आज आलम पता है क्या है?
सिर्फ 24% घरों में दरख्त लगे, 66% दही इलाकों की बात कर रहा हूँ यार शहरी इलाकों की बात नहीं कर शहरी रहा। इलाकों में सारी जिंदगी हमारे गुजरा वाला शहर महल्ले के अंदर 2-3 दरख्त बाखुदा सारे घरों के आगे दरख्त लगे होते हैं, लसूड़े लगे हुए, टालियां लगी हुई, ये तरेकें लगी हुई। और भाईजान मैं अर्ज ये करने लगा हूं कि वो वक्त था जब दरख्त बहुत बड़े होके बुलंदो बाला होके फल दिया करते थे। आजकल तो ये 6-7 फुट ऊंचा होता है दरख्त तो फल देने लग जाता है। आजकल तो आम आदमी के लिए अब शहरी इलाकों में अपने घरों में दरख्त लगाना कोई मसला ही नहीं रहा। छोटे छोटे दरख्त छोटे-छोटे जब तक कौडू फील्ड च आया ना जी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁਣ ਫਲ ਦੇਣ ਦੇ। सर ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जब तक उनमें दरख्त ना हो उसका नक्शा ही पास बिल्कुल ना कई करे। कुछ किया जा सकता है। अच्छा ये भी किया जा सकता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में कोई टारगेट पूरा किया जाता है, ये बिलियन ट्री मंसूबा है, कई जगह पे आपको नजर भी आते हैं कि उसके नतीजे में दरख्त लगे। एक मैसिव स्केल पे इसको फैलाने के लिए बहुत जरूरी है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में 1 साल 2 साल फिर तीसरे साल तक आप देखें कि दरख्त जड़ पकड़ चुके हैं, दरख्तों की हिफाजत की जा रही है, उनको कोई इंसेंटिव दे दिया जाए, वहां पर हॉस्पिटल बना दिया जाए, इनाम के तौर पे वहां पर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी बना दी जाए, उस डिस्ट्रिक्ट को इनाम दिया जाए, वहां के डिप्टी कमिश्नर को इनाम दिया जाए। बेशुमार तरीके हैं जी आबो हवा को साफ करने के लिए। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। बड़ा मजलूम है ये चक्की वाला। हाँ जी आप मुंह से देख लें। ਉਹ ਪਰਲਾ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ। ये इस सारी सूरत हाल का बुनियादी तौर पे जिम्मेदार है। अच्छा जी। ये महकमा फूड का अफसर है। और इसकी सेहत से अंदाजा लगा लें कि आटा जाता कहाँ है। नाज़रीन चीनी माफिया की तरह महसूस होता है कि हुकूमत आटा माफिया के सामने भी बिल्कुल बेबस है। आटे की कीमत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है और उसकी एक बुनियादी वजह इन चक्की मालकान का रवैया और हेरा फेरी है। जी सरकार। मैं माफी चाहता हूँ जुनैद साहब, ये जो आपने शैतान और फरिश्ता फिल्म शुरू की है ना, जिसमें आपने हुकूमत को फरिश्ता और चक्की मालकान को शैतान पे कर दिया है, ये मेरा ख्याल है आपको किसी ने गलत स्टोरी सुनाई हुई है। गंदम का रेट ही नहीं कंट्रोल कर सकते ये लोग, तो हमने तो वहां से गंदम लेके ऊपर से चक्की में डालनी होती है, और चक्की अब वो फूफो की हाथ वाली चक्की नहीं रही जनाब, अब बिजली से चक्की चलती है, और फिर बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल भी हमें आना होता है, चूंकि वापड़ा में हमारा को मामा चाचा नहीं लगा। मजलूम चक्की वाला है जिसने गाहक के मथे लगना होता है और गाहक की गालियां खानी होती है। बड़ा मजलूम है ये चक्की वाला। हाँ जी आप मुंह से देख लें। ਉਹ ਪਰਲਾ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ। ये इस सारी सूरत हाल का बुनियादी तौर पे जिम्मेदार है। अच्छा जी। ये महकमा फूड का अफसर है। और इसकी सेहत से अंदाजा लगा लें कि आटा जाता कहाँ है। भाईजान आप जवाब दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेहरबानी। खुदा का वास्ता आटा भी सस्ता करें। देखिए अवाम का क्या हाल हो गया। अरे यार मेरी बात सुने, ये अवाम तो चले आटे की कमी का शिकार हो सकती है, अपनी वारदात तो आटे पे ना डाले। भाई जी अब बुजुर्गों की नाअहलियां हम पे तो ना डाले। ये तो खिलाएं पिलाएं उनको, सिर्फ आटा ही तो नहीं खाना होता, और भी 36 चीजें खिलानी होती। अब जो बच्चा बचपन में मिट्टी खाता रहेगा उसके जिम्मेदार हम तो नहीं। अच्छा गुलाम जबीर साहब आप फरमाइए ना, कब तक आप लोग इस सारी सूरत हाल में आंखें बंद करके बैठे रहेंगे? मुझसे पूछें जब तक इनका पेट नहीं भर जाता। ये ऑटोमेटिक लोग हैं जुनैद साहब, जब इनका पेट भर जाता है ना फिर खुद ही आंखें खुल जाती हैं। पेट में थोड़ी सी भी गुंजाइश हो इनकी आंखें बंद रहती। जो इनकी सेहत है, लगता है ये तो कच्चा आटा भी खा जाते होंगे। आटा कच्चा हो आटा पक्का हो, गजाइयत एक जैसी होती है। नहीं एतबार तो बेशक उनके पेड़े को चक मार के देख। यार मेरी बात सुनो जरा, अपनी वारदातों की तरफ भी आओ ना। पहले नंबर पर तो ये कि तुम गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड चक्की मालिक नहीं हो, तुम्हारी चक्की जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसके बावजूद तुम सरकारी गंदम का कोटा भी वसूल करते हो। उसके बाद तुम लोग फिर मन माने नर्ख भी वसूल करते हो आटे के, फिर आटे में मिलावट भी करते हो, फिर आटे में खराब गंदम भी शामिल कर देते हो। कहाँ से तुम्हारी वारदातें पकड़े हम लोग? सवाल करो तो सीधे अखबार छापन लग गए। अखबार ही बनता है तुम लोगों एक का। सवाल आप करें ना। पहली बात आपने कही है कि आपकी चक्की रजिस्टर्ड नहीं। जी जी। अब मैं लोगों की खिदमत करूं या सरकारी दफ्तरों में खजल होता रहूं
चक्की रजिस्टर्ड कराने के लिए। मैं एक खादम आदमी हूँ जुनैद साहब, मेरे मोहल्ले में कोई चक्की नहीं थी, लोग बेचारे दूर दूर खज्जल होते थे जी। आपके भाई एजाज भट्ट ने सबसे पहले चक्की लगाई है मोहल्ले की खिदमत करने के लिए। अच्छी तरह याद है मुझे जुनैद साहब, 35 साल पहले मैंने वो वाली चक्की लगाई थी जो बैल चलाता था। फिर बैल मेरा सरकारी अफसर लग गया। मैंने फिर बिजली का कनेक्शन ले लिया, अब मैं बिजली पे चक्की चला। जुनैद साहब, असल बात जो है ना वो नीयतों की है। वो क्या सियाने लोग कहते हैं कि नीयतों के भाग है। जैसी जैसी किसी की नीयत होगी वैसा वैसा ही काम होगा जनाब। नीयत खराब है जुनैद साहब, ये सरकार की। अच्छा, तुम्हारी नीयत ठीक है, जो तोल में भी गड़बड़ करते हो। अल्लाह के फजल से जुनैद साहब, कभी भी तोल में मैंने गड़बड़ नहीं की। हाँ, मेरी जो तकड़ी है उसका एक पलड़ा जरा छोटा है, एक बड़ा है। हो जाता है किसी लत वड्डी की भी हो जाए। मैंने इसलिए जो छोटा पल्ला है उसके साथ कुछ टाकियां बांधी हुई हैं तोल पूरा करने के लिए। आप मेरी तकड़ी को ऐसे उठा के देख सकते हैं, और मेरा तोला हुआ आटा आप जाके जहां मर्जी बैठ के तोल लें। ऐसे कदली तोले हैं, खाएं जल्दी से, टाइम जाया करने की क्या जरूरत है। मैं ईमानदार आटे में छान पूरा मिक्स करते हो तुम। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं साहब। हाँ, आटे में मैं चिट्टा आटा जरूर मिक्स करता हूँ, थोड़ा सा उसका रंग रूप बनाने के लिए। इस मेरी बात को गौरी साहब बेहतर समझते हैं, इनको पता है कि रंग रूप जरूरी होता है। वैसे मैंने कभी अल्लाह के फजल से पैसों की वजह से या पैसा कमाने के लिए मैंने मिलावट नहीं। और मौलाना एजाज भट्ट साहब, इस मामले च तुसी कल्ले ना क्लियर हो जाओ, इस जुर्म दे च सारे ही थोड़े थोड़े शामिल ने। माशाअल्लाह, तुसी थोड़े शामिल हो जी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ऐसे ही ईमान से ये जो उसने पाइप ऊंचा किया है, ये सोचने की तो बात उसने बताया हमको बताया हमें कितना है। कि पाइप च किन्ना ना तेल हुंदा, उन्हें छड़ जाया करो। ये अजीजी जिस तरह मेहनत करके पेट्रोल डाल रहे हैं गाड़ी में, ये लगता है किसी लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं। अच्छा भाईजान, जो हमारा तस्वीरों और वीडियोस वाला सेगमेंट होता है, हमारे व्यूअर्स बहुत पसंद करते हैं। उस पर जो आपके पुरमगज़ तज्ज़िये होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जाहिर है दानिश्वरों की बातें लोग सुनते हैं गौर से। अच्छा जी, उस सेगमेंट में जो आज आपको मैं पहली वीडियो दिखा रहा हूँ, एक बच्चे की शरारत है, और ये भी कहा जा सकता है कि खुशियाँ तलाश करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। ये देखो बच्चा हरकत क्या कर रहा है, और खुशियों का मतलाशी है। कितनी छोटी हरकत से वो, ये देखे, उसने ठोकर मार के वो जो मोटर बाइक का सिक्योरिटी अलार्म है वो ऑन किया है, उसको टच किया है। उसको टच किया है, और फिर डांस कर रहा है उसको। वाह जी वाह, वाह वाह, लो जी, क्या बात। वाह वाह। हमें तो सर कुछ मौका चाहिए सर। वाह रे वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। बहुत अच्छा। ये अपने थैले साहब का शागिर्द है। नहीं, ये खुशियां नहीं तलाश कर रहे थे, अपने हाथ पैर सीधे करन दे। ये तो कोई बड़ा मैकेनिक बच्चा है भाई, वाह जी, बाकायदा कोरियोग्राफरी कर रहा है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वर्जिश वाह। की वर्जिश, डांस का डांस। खाली थैला ही नहीं, फनकार बड़े बड़े फनकार हैं जी। हाँ जी, वो जो बड़े हुए ना, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर, वो जब इंटरव्यू देते हैं बड़े होके तो कहते हैं जी हम खंबे की रोशनी में पढ़ा करते थे। तो ये भी ऐसी इंटरव्यू देगा कि जनाब मैं जो मोटरसाइकिल के सिक्योरिटी अलार्म पे डांस सीखा हूं। और वो जो कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने कोरियोग्राफी नहीं कहा, कोरियोग्राफरी कहा है। ये ग्राफरी कर रहा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो होंडे की बदौलत है। अच्छा भाईजान, अगली जो वीडियो है वो गिनीज बुक की है जी। अंडर वाटर बेंच प्रेस, पानी के नीचे जेरे आब। और ये रूस के वेंटेले नामी शख्स ने जीते थे। 43 उसने बेंच प्रेस लगाए अंडर। हाँ, ये देखें। यार है, सांस रोक के तो लगाना हाँ जी। बड़ी बात है। 43 ला गया, बड़ा भाई होया जी। हाँ, मेरा ख्याल है ये जब अंदर गया होगा ना तो इसकी हेल्प जो है वो कचू को मैंने की हो। 2-3 दफा उसने भी कहा गया मैनू पढ़ा दे। जीजी लगा इसने 125 लेने थे, जेड़ा उत्ते ध्यान रखन खलोता ओदा साह डकिया जा रहा।
बहुत अच्छे, क्या बहुत अच्छे, मगर देखो इधर टगेदार रिजल्ट नहीं निकलना। रिजल्ट क्या, वो इसे चीनी बनाए, क्या करेगा, यही कुछ ही होता है। तो मेरा मतलब है यहाँ थे ना को बाहर निकलेगा तेन 2.5 किलो मच्छी मिल जाएगी, कह लो जी जाके भरजाई नूं देना पकावे, या को कच्छू को मैं कहन के भाई जी अपना फोन नंबर लिखा जाओ मैं तेन फोन करांगा। वो तो अपने बच्चे ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ कि मैं इन्ना प्रेस लाया कि देखो पसीने ना तालाब भर गया। डंड उसके ऐसे हैं जैसे उसने कभी भी नहीं उठाया अभी। पानी च नहीं डंड बांधते, जिवें बांधते ने फिर ढिले हो जाते। अच्छा अच्छा अच्छा, पानी में नहीं बनते। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨੇ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਚੱਲ ਵੇ ਤੋੜ ਇਥੋਂ ਚਵਲੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੰਡ ਲਾਣੇ, ਤੋੜ ਜਾ ਘਰ ਆਪਣੇ। अच्छा जी, एक वीडियो है जो बड़ी देर से सोशल मीडिया पे वायरल है कि एस्केलेटर का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तानी कौम कैसे करती है। ये देखें, ये देखें, ओ वाह, वो देखें। देखें यार, अफसोस की बात ये है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कि इनके माँ बाप भी तो यहीं कहीं होंगे ना, वो उनको नहीं मना कर रहे। कोई मना करने वाला नहीं है। सर यही तो बच्चे हैं, जगह कोई भी वो अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। कितना खतरनाक है। ये बच्चे बेटे शरारती, माँ को कहने लग पड़ता जाओ खेलो जाके। ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੈਂਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਰੱਖਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੂਟ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ। मैं गोगा तो रेड़े थे, को ना रेड़ेगा मेरा दोबारा नहीं पेगी। ਗੋਗਾ ਉੱਤੋਂ ਰੇੜੇਗਾ ਤੇ ਗੋਗਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀੜੀ ਹੈ ਰੇੜਾਏਗੀ। अच्छा भाईजान, अगली वीडियो किफायत शायरी की एक बेहतरीन मिसाल। देखें जरा, ये देखें, ये पेट्रोल डाल रहे हैं खुद, उससे लेके ना खुद डाल रहा है, और ये बताने की मुझे जरूरत नहीं कि इस बंदे के नाम के साथ शेख लगता हो। बता ये देखें, मैंने भाई पूछा कि ये आखिर में, ये देखें, ये देखें, आहा, ये उंगली से डाल रहा है। नहीं वैसे ही ईमान से ये जो उसने पाइप ऊंचा किया है, ये सोचने तो की बात उसने बताया हम बताया हमें कि पैप च किन्ना ना तेल हुंदा, वो ना छड़ जाया करो। ये अजीजी जिस तरह मेहनत करके पेट्रोल डाल रहे हैं गाड़ी में, ये लगता है किसी लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं। नाज़रीन, ये था आज का अस्फ़हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि अगर हम किसी ताकतवर का नुकसान करेंगे तो वो हमारी दुनिया खतरे में डाल देगा, अगर किसी कमज़ोर का नुकसान करेंगे तो आखिरत खतरे में डाल देगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।